So today we are going to discuss about the components of the map. Okay. So basically there are how many components of map? Three. Three. Yes. There are Three components of the map. Three. Three components of Schematic map. analytical map, physical oh, map. Political map or analytic map. listen to the question first. I am not asking about types of map. I am saying what are the components of map. Okay. Political, physical, and thematic maps are the types of map. No map, distance, direction, and symbols. Good morning, ma'am. Distance and good morning. Distance, Components of direction, map are distance, direction, and symbols. Yes. The first topic from this is distance. First, we will discuss about the first component of map, that is distance. Distance. Yes. Maps are drawing which reduce the. I have read this, ma'am. Now nobody will speak. Mute yourself, everyone. Maps are drawings which reduce the entire world on a part of it to fit on a sheet of paper. आपको पता है our earth is a huge shape. Okay, बहुत ही बड़ी है हमारी अर्थ की शेप, राइट? और उसको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना इट इज नॉट इजी. ठीक है, जो भी कार्टोग्राफर्स होते हैं, कार्टोग्राफर्स हु आर कार्टोग्राफर्स, द पर्सन हु मेक मैप्स. ओके, ऐसा पर्सन मैप बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स. एंड द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी. अंडरस्टूड? कार्टोग्राफी मतलब ऐसी साइंस जिसमें मैप मेकिंग की जाती है. ओके, यस. सो जो कार्टोग्राफर्स होते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क है कि इतने ह्यूज पोर्शन को, अर्थ के इतने ह्यूज पोर्शन को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना. बिल्कुल बहुत ही केयरफुली उन्हें ये काम करना पड़ता है मैप मेकिंग का. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट. Yes. Or we can say maps are drawn to reduced scales. Now, what is scale? We will discuss about this in this very topic. Map scales क्या होते हैं इसके बारे में भी हम अभी discuss करेंगे. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. यानी कि जो real actually जो दो locations के बीच का distance है, map में उसको accurately present करना, it is a very difficult टास्क. इसीलिए जो कार्टोग्राफर्स होते हैं बहुत ही ध्यान से ये चीजें, बहुत डिस्टेंस है, डायरेक्शंस है, ये सब बहुत ही ध्यान से मेंशन करते हैं. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. अब आपको पता है ग्राउंड पे, तो अगर मैं आपको कहूँ कि draw the map of your school and let me trace the distance between your school and your house. Okay, तो distance बहुत ज्यादा है, तो उसको हम एक छोटे से पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कुछ इस तरह से रेशियो में डिवाइड करेंगे कि हमारा जो लैंड का डिस्टेंस है वो हम इजीली एक्यूरेटली मैप पर भी रिप्रेजेंट कर पाए. और इसके लिए क्या यूज किया जाता है? मैप स्केल यूज किया जाता है. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. और इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक स्केल यूज करते हैं. इसलिए suppose this is the distance of place A and place B on the. Okay, just suppose it is 5 kilometers. ओके, अब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, यानी एक्चुअल डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हम क्या करेंगे? इसके डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, छोटे फॉर्म में लेके आएंगे और यहाँ पर प्लेस ए से प्लेस बी तक का रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. 1 centimeter on the map.
the actual distance of the between the two places. Understood? This is actually called the scale. इसी को हम क्या बोलते हैं? Scale बोलते हैं. For example, Okay, ma'am. scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. यानी इन दोनों के बीच में क्या है? एक रेशियो है. ओके, यानी इसको एक हम कह सकते हैं पैटर्न में हम इसको लेते हैं जो कि ग्राउंड का डिस्टेंस रिड्यूस फॉर्म में हम मैप में शो कर सकें. दिस इज नोन एज scale. For example, the distance between your school and your home. अभी जो एग्जांपल हम लिया वैसा ही एग्जांपल लेते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में जो गिवन है it is like this. Just 2 centimeter 10. It shows 10 kilometer distance by 2 centimeter. ओके, दो पॉइंट्स लिए हैं हमने. एक आपका स्कूल है और एक आपका हाउस है या होम है. Now the distance between your school and your home is 10 kilometers. 10 kilometer is on the ground. Ground पे है. Okay. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer. अब क्या करेंगे? आपके इस डिस्टेंस को हमें मैप में शो करना है. किस तरह से शो किया? This is the school and this is the house and I have written 2 centimeter distance. That means this 2 centimeter on 10 kilometers. equals to 10 kilometers on the ground. This is known as ratio. इसके रेशियो में लिया हमने. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ग्राउंड पे किसके इक्वल है? वो 10 किलोमीटर के. ओके, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. 5 kilometers. Ma'am, we have to write. Understood? So we have used this scale for drawing or representing the distance between school and home. Okay? Understood, everyone? Yes, Dipjot, correct one. No, Kenjal, you no need to write this in your notebooks. Yes, Dipjot, your example is absolutely correct. Understood, everyone? What is map scale? Map scale समझ में आया आपको? Yes, ma'am. I can understand, ma'am. Ma'am, next direction, na? Yes, Akshay. Next direction, na? नेक्स्ट इज डायरेक्शन. ओके, यस. सो अलग-अलग मैप्स के लिए अलग-अलग स्केल का यूज किया जाता है. ठीक है, अब स्केल्स भी कैसे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के. ओके, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. Okay, यहाँ पर reverse क्वेश्चन है. रिवर्स क्या है? There are 2 types of scale. First one is small scale map and second one is large scale map. तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब भी मैप में हमें लार्ज एरिया में रिप्रेजेंट करना है, ये कहाँ पे है? ग्राउंड पे. तो हम कौन सी तरह का मैप लेंगे? स्मॉल स्केल मैप. ओके, जब भी हमें कोई बड़ा एरिया जैसे कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक मैप पे, तो ऑब्वियसली किसी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट का एरिया ऑब्वियसली बड़ा होगा. ज्यादा बड़ा है, तो हम किस तरह का मैप लेंगे? स्मॉल स्केल का मैप लेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कॉन्टिनेंट का एरिया अगर 500 किलोमीटर है, ठीक है, इसके लिए हमें स्मॉल स्केल मैप लेना पड़ेगा. 5 सेंटीमीटर. ओके, इसका मतलब कि यहाँ पर स्केल 1 सेंटीमीटर जो स्केल है वो ग्राउंड पे 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज स्मॉल स्केल मैप. ओके, वी विल राइट द डेफिनेशन, डोंट वरी.
अभी सिर्फ समझ गए। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल मैप। जब हमें स्मॉल ऑन द ग्राउंड, ओके, जो एरिया लिखा है मैंने, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, ओके। सो स्मॉल करना होता है, then we take large scale। इसका माइक ऑन है बेटा, वांशिका माइक ऑफ रखो। ओके, जब लार्ज एरिया, सॉरी स्मॉल एरिया हमें रिप्रेजेंट करना है, देन वी टेक लार्ज स्केल मैप। इसके लिए एग्जांपल है, जस्ट सपोज 500 मीटर्स हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर। दैट मींस यहाँ 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट 1 मीटर ऑन द ग्राउंड, जबकि यहाँ पर किलोमीटर है, 100 kilometer. 100 kilometer is kilometer. bigger unit and small unit. I request every student to please mute your mics. Nobody will unmute. नहीं अनुषी, कॉपी में नहीं लिखना है बेटा। Understood about these two maps? सभी को समझ में आया दोनों Yes, maps की ma'am. difference? This is just the reciprocal. Okay, Yes, आया? ma'am. अभी दोबारा समझाती हूँ मैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब भी हमें किसी large area को, जैसे सपोज कंट्री है, कोई भी कंट्री लाइक इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया को अगर हमें मैप में रिप्रेजेंट करना है, तो अब इंडिया में कितना ज्यादा, बहुत ही वास्ट एरिया है उस कंट्री का या उस कॉन्टिनेंट का, तो हम मैप क्या करेंगे, हमारा पीस ऑफ पेपर तो सेम है, छोटा छोटा पेपर है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम स्मॉल स्केल मैप यूज करेंगे, यानी लार्जर डिस्टेंस को, 500 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसको हमने छोटे से स्केल से यानी 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सिमिलरली इसमें क्या होगा, स्मॉलर एरिया, अब हम यहाँ पर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जस्ट सपोज हम किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी स्मॉल स्टेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंट्री के कंपैरिजन में स्टेट का जो एरिया है वो ऑब्वियसली स्मॉल होगा, ठीक है। ओके, आयाम को समझ में आ गया, वेरी गुड। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map, shows 5 meter only on the ground. Yani, please adjust the camera downwards. Is it okay now, Siddhika? मैम लिखना है क्या ये? नहीं लिखना नहीं है बेटा, अभी लिखेंगे। Yes, ma'am. Okay now. Okay. तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, इस यूनिट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। नाउ लेट्स राइट द डेफिनेशन। यस, वन मोर थिंग इज देयर, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स, यानी लार्ज स्केल में जो मैप बनाए जाते हैं उनमें हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज दे कवर्स लार्जर एरिया, बहुत बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, okay? Okay, ma'am. Yes, so take out your notebooks and start making notes. There are 3 components of map. First one is distance. Second one How the cartographers represent the larger distance on the map. इसी तरह से जो कार्टोग्राफर्स होते हैं, जो मैप ड्रॉ करते हैं, वो लार्ज डिस्टेंस को रिड्यूस करके छोटे स्केल पे इन द सेम रेशियो दे यूज टू रिप्रेजेंट इट ऑन द फ्लैट पेपर, ओके। माला वर्मा, सिट प्रॉपर्ली बेटा। Why you are not writing? मैंने लिखने के लिए कहा, ये लिखिए अपनी नोटबुक में।
First one is distance, second one is direction. Third is symbol. These are the three components of the map. Noted, ma'am. डन मैम। कल भी मैंने आपको बताया था क्लास में इस तरह से डन मैम नहीं बोलना है। अरे वो थम्स अप का साइन दे दो। यस ये इमेज में आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर देखिए, कर्सर पे आप देख रहे हैं एक मैप है और एक रेड एरो जो है इस मैप स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन यू सी इट? यस मैम। यस। तो कोई भी आप जब मैप देखते हैं मैप, Yes, ma'am. कोई भी मैप जब आप देखेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर मैप स्केल जरूर मेंशन मैम उसके नीचे ये लिखा होता है मैं इस तरह से। लिखा होता है। और मैप्स अगर मुझे मिलते हैं तो आई विल शो यू। और ये पिक्चर भी थोड़ा क्लियर नहीं है। ओके, आई होप आपको Yes, ma'am. मैम समझ में आ गया। ओके ओके, अक्षय को समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, सो हम मैप स्केल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैम मेरे को भी समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। मेरे को भी आ गया। We have completed components of that. Now let's write the definition for scale. A ratio it is the ratio between the actual distance on the ground traffic and the distance shown on the map. So this map scale is very much important. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Scale is very much important on the map. Okay, अगर map में scale given नहीं होगा तो you cannot find the actual distance between the two places. दो places के बीच में actual distance आप find out नहीं कर सकते। अरे आवाज ही नहीं आ रही मैम।
किसकी आवाज नहीं आ रही है? डन मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही All है। is All is clear. clear. एवरीथिंग इज क्लियर। ऑल इज क्लियर मैम। ओके ओके, जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपने ना अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है। सोनाक्षी गर्ग, इसे बंद कीजिए पहले। आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके सोनाक्षी गर्ग, you are presenting your screen, that's why you are unable to hear me or unable to see the microphone. Next is मैम अभी उसकी स्क्रीन पे चल है इसलिए उसको आपके मैम इट डजंट स्टॉप। please don't unmute, sorry. स्क्रीन शेयर कर रही है। Sonakshi girl, please don't stop sharing your screen. सोनाक्षी गर्ग, आप सुन रही हैं मेरी आवाज? सभी बच्चे मेरी वीडियो को पिन कर लीजिए। ओके, आपको दूसरी जो प्रेजेंटिंग स्क्रीन है वो नजर नहीं आएगी। यस मैम, हमने पिन कर रखा है। ओके ओके ठीक है। मैम चलो उसने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है तो आपकी आवाज उसको कैसे सुनाई देगी? मैम एक बार आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए ताकि उसकी स्क्रीन हट जाएगी। अभी आप नोट डाउन कीजिए। एक बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके स्टॉप कर दीजिए उसे अपने से। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम वॉइस इज नॉट कमिंग। ऑल इज कमिंग, ऑल इज क्लियर मैम। सोनाक्षी गर्ग, अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कीजिए बेटा, तभी आपको मेरी वॉइस आएगी। Small scale map. What is small scale map? A large area and large area continents, countries, Ma'am, continent means small scale. When we use small, this is enough for small scale map. Example, सकते हो, like 5 kilometers. यहाँ पे ब्रैकेट में G लिख लीजिए, that is ground is equal to 5 centimeter. P means paper. Okay. Short example is enough. अपने कैमरास ऑन करके बैठिए सभी बच्चे, ताकि मुझे पता चले कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है कौन नहीं। मैम 5 सेंटीमीटर P मीन्स क्या है? P means on paper. अभी हमने यहाँ पे लिखा है
On paper, large areas of like continents and countries are to be shown on paper. G means ground, yani ground का distance is 500 kilometers. That is equals to 5 centimeters on, sorry, 5 centimeters on paper. That is on map. Okay, ma'am. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे पूरा पेपर भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे. Ma'am, continents means Completed. Continents are like Asia, Europe, etc. Nobody will speak. What happened? continents means done, ma'am. Done? Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Content. Done, ma'am. Done, ma'am. Continent. Done, Here, ma'am. there are 7 continents. Subcontinent. Asia, Africa, Europe. Yes, there are total major 7 continents. Next is large scale map. When a small area like a village or town to be shown on paper. Can be large scale number 500 meters. It is on ground. It is equals to 5 centimeters on paper. This is called large scale map. मैम लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेटिव तो लार्ज स्केल मैप ही होता है ना. Done, ma'am. Yes, Dipjot, repeat your question. मैम ज्यादा इंफॉर्मेटिव लार्ज स्केल मैप्स होते हैं ना. Yes, large scale मैप ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं क्योंकि वो लार्जर एरिया को शो कर रहा है. ओके, अगर आपको इंडिया के बारे में स्टडी करना है, किसी अदर कंट्री में स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली आप लार्ज स्केल मैप्स है उसी को आप सॉरी स्मॉल स्केल मैप जो है उनको देखोगे. Completed till here? Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. No, ma'am. Done, ma'am. Completed. So large scale maps are basically when we have to represent a small area. छोटे एरिया को जैसे कोई विलेज है या टाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रावत भाटा का आप मैप देखेंगे तो उसमें आप इजीली जो भी चीजें लाइक एनपीसीआईएल कहाँ पे है, प्लांट का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है, पाराझार कहाँ पे है, वाटरफॉल चूलिया वाटरफॉल्स कहाँ पे, इन सबके बीच का डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. किसमें? लार्ज स्केल मैप, जो कि किसका होगा? टाउन, दैट इज रावत भाटा. ओके, जबकि आप अगर इंडिया का मैप देख रहे हो या फिर राजस्थान का मैप देख रहे हो तो उसमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. यस,
कई बार आपने जब ट्रैवल करते हैं तो जब भी हम किसी न्यू प्लेस में एंटर करते हैं, लाइक अगर हम रावत भाटा से कोटा जा रहे हैं या किसी और प्लेस में जा रहे हैं, तो जब भी हम वहां एंटर करते हैं वहां पे भी कई बार ऐसा मैप मेंशन होता है। ओके, मैप लगा हुआ होता है जहाँ से आप देख सकते हो कि हमें अब कौन सा रूट लेना है, कौन सा हाईवे पे ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस पे है, दिस एंड दैट। ओके, तो इस तरह से ये लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स हमारे मैम नाउ देयर इज गूगल मैप्स। हाँ, अभी गूगल मैप हो गए हैं, नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, टेक्नोलॉजीज इतनी हाईफाई हो गई है, हाईटेक हो गई है कि अभी हमें Yes, ma'am, पेपर ma'am. मैप्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। Completed? Okay. Okay, let's complete. Let's do it. There is a green box. This one, let's do. इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं. Look at the figure 4.1. 4.1 फिगर कहाँ है? ये रही. It is a map of village. ये एक village का मैप है. Here you can see community center, PO, that is post office, shops, some Now houses. 1 centimeter 10 meter is लिखा है इसके स्केल. Yes, इसका मतलब इसका स्केल It क्या is है? a small scale. 1 centimeter is equals to 10 meters Large on the scale. ground. Okay, ground पे 10 Large kilometer. scale. Okay, Akshita. Yes, look at the figure 4.1. There is a scale. We have seen the scale. It may be used for measuring distance between places. For example, the distance between the well and the tree is 5 centimeter. अभी देखते हैं well कहाँ पे है? Here it is well and here it is tree. So what is the distance? It is 5 centimeter on the map. यानी इस map पे इसका distance 5 centimeter. Then what is its actual distance? 50 meter. 50 meters. 50 meters. And 50 because the meters. figure is given that 1 centimeter on the map is equals to 10 meters on the ground. That is why the distance between the well and the tree is 50 meters on the ground. Very good. Next, it means that the actual distance is 50 meters. Now the distance between the PO here stands for post office. Okay, to Kareem's house is 12 centimeter. It means what is the actual distance? 120 centimeter. No, Meter. 120 is not meters. Meters, yes, very good. 120 120 meters. Units में confusion नहीं होना चाहिए. ध्यान से देखिए स्केल को. It means 120 meters on the ground. But you cannot fly like a bird directly from E to A. अब E से A तक का जो distance है. Here it is Kareem's house. Mic किसका on है? अक्षय mic off रखिए बेटा. Yes. So distance E. Here it is Kareem's house to the point A. इनके बीच का distance क्या है? ये हम directly like a bird, यानी हम उड़ के नहीं जा सकते. हमें ये distance कैसे travel करना पड़ेगा? By walking. Okay. यहाँ से हम इस walking distance पे जाएंगे और तभी जाके हम point A तक पहुंच पाएंगे. You will have to walk on the road. Let us measure the total walking distance from E to C, then C to M, M to B, and B to A. Add all these distances. It will be the total walking distance from Kareem's house to the post office. Okay? यानी अगर बेल से लेकर ट्री तक का हमें डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पहुंच जाएंगे. हमें बकायदा जो रोड गिवन है, जो ग्राउंड है, उस पे वॉक करते हुए ट्री तक पहुंचना होगा. Okay, this was the chapter. We have completed the first component of the map, that is distance. We have discussed about